request the chair of this session, former governor, trustee of the India International Center, Mr. Vora, to please give his presidential remarks. Eminent dignitaries on the dais, Janab Kadwai Sahib, Khurshid Sahib, my colleague Shyam Saran, Professor Narayani Gupta, Director Sheikh, Director Srivastava, Director IOC, ladies and gentlemen. मैंने शुरू में तो सोचा था जब सलमान खुर्शीद साहब ने मुझे कुछ महीने हुए पैगाम भेजा कि ये 3-4 रोज की कॉन्फ्रेंस होगी and it will be around Delhi, Shahjahanabad, looking into the layer upon layer of the old city, which is revived, rebuilt. And he had suggested that I could perhaps venture to speak on the subject. I had promptly not agreed to do so because we have historians like Professor Narayani Gupta here in our midst, who you all heard her today. In 30-40 minutes, she has given us a kaleidoscopic relook at the entire history of this town or city, whatever you call it, looking back or looking forward, built, rebuilt, expanded. And who lives in Delhi? सलमान खुर्शीद साहब ने जिक्र किया कि अब तो बाहर के लोग आए हैं, दिल्ली वाले कहाँ हैं, क्या करते हैं, उनको एक डब्बे में डाल के प्रिजर्व कर लो, वो भी खत्म हो जाएंगे, गुम हो जाएंगे. तो मैं I will not talk about what I thought I would, but ये किताबें जो शेख साहब ने अभी now just been released, इसको मुझे ये कुछ ख्याल आया है कि एक तो अंजुमन को मैं दाद देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस किदवाई साहब को, डायरेक्टर साहब को, फरूकी साहब को, कि they have had the intellectual academic integrity to now publish the entire original text of Mir Taqi Mir. A century ago, they published the censored version. And I remember many years ago having attended a discussion, not a seminar, on this very great poet. I think it is again very congratulatory that we are talking of remembering Mir Taqi Mir and it's on his 300th year anniversary, birth anniversary. He is one of the greatest poets. Now, अंजुमन के बारे तो बहुत बातें हो सकती हैं, आज वक्त नहीं है, समय नहीं है, बट ये किताबों के जिक्र में शेख साहब, फरूकी साहब, मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे my mind goes back to where I was born and where I studied, and that is Lahore. Though that's a far way distant now. उर्दू ज़बान की, उर्दू कल्चर की और उर्दू किताबों की, जो उर्दू फ़लसफ़ा, पोइट्री, प्रोज, fiction, we have some or the other, I feel, I may be totally wrong, not been able to recreate that in Shahjahanabad. Though this is the heartland, Urdu, some of the greatest Urdu poets were either born here or around here. Ghalib साहब, मीर साहब, और आप बताइए कौन कौन यहाँ से पैदा हुए जिन्होंने who succeeded and flourished, perhaps not financially but intellectually. Lahore का मैं जिक्र करूँ कि that it had its own culture, which is difficult to describe. It was civilization in its own style. There again, layer upon layer of history, foreign invaders, rulers, conquerors, they left their stamp behind. And the books that I recall, Dr. Sheikh and Dr. Farooqi, मुझे याद आता है वो जो किताबें थी हमारे घर में और स्कूल में, वो मरक्का अदब. Now it was a series, as a reader series. It was focused on grade level
class level teaching, but fantastic, classic, I would say that. And the people who taught us, they were called just munshis. Munshi was a very respected word. Today, perhaps, when you use this word, it is not very respectful. किसी को मुंशी कह रहा हूँ उन दिनों में मुंशी जी या मुंशी साहब बहुत very well respected person in our society. Munshi Fazil, Munshi Alim, and they were the grades of the munshis. And ये गुलिस्तान बोस्तान शेख सादी पर्शियन ट्रांसलेशन उन दिनों में उर्दू बोर्ड के लिए पढ़ाई जाती थी. And in every house you would find these books. But the books I remember now, जब जिक्र हुआ अभी बात चल रही थी तो मुझे ये एक किताब शेख साहब ये सीरीज ऑफ किस्सा टेल्स बागो बहार Chahar Darwish. Now this was written by a person, interestingly I'm mentioning because it is I've never forgotten it. Miravan. Miravan in the early part of 18th century, almost contemporaneous with Mir Taqi Mir. I would say genius in his own right. He didn't find employment, he lost his way into Calcutta. There he ran into the Fort William College. वहाँ एक अंग्रेज ग्रामेरियन थे जॉन गिलक्रिस्ट, वेरी वेल नोन ग्रामेरियन. उन्होंने इनको कहा कि ये चार दरवेश को प्योर हिंदुस्तानी में ट्रांसलेट करके लाओ मेरे पास. So this gentleman spent months of hard toil. He produced a classic. And this John Gilchrist was so pleased with the product, he immediately gave employment in the Fort William College. And there's a lot to be said about the interaction between languages, a kind of personalities, juxtaposition of personalities at a given point of time in history, which produced literature. The triggering points. Now here is a John Gilchrist, British grammarian, colonial East India Company employee, taking interest in Urdu and Hindustani and so on. And another book which I have never forgotten, I still have it. I got it with great difficulty after we left Pakistan. For 30, 40 years, I couldn't get a copy of this book. This is Barogi Saab, Patras ke Mazameen. And one of the most humorous, satirical set of short stories. I think Jonathan Swift would be put to shame that subtle satire in these short stories. They have the group of short stories. And these were written by a person called Pir Sayyid Ahmed Shah Bukhari. He did an MA in English from Lahore in Government College. He was a very brilliant student. He went to Cambridge, he did higher studies, he came back. He had the distinction of being the principal of Government College Lahore for 3 years. Not only that, he was director of the All India Radio and British Times. And then when Pakistan came into being, he was Pakistan ambassador to the United Nations. तो ये अगर पत्रस अगर कहीं मिलते हो आसानी से तो आप ज़रूर उनको भी बांटिए ज़रा. तो उर्दू का बहुत मुफाद होगा उससे. तो मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा. It's the end of the day, but I would congratulate the Anjuman for having battled through difficult times after partition. Very difficult times, if I may say so. First the shifting to Aligarh, then to Delhi, where they have been for almost half a century now. This book, just now, one of the copies which released, Urdu Adab, is now itself 100 years old. I have copies of which were quite old, which are not in this form, glossy form. But it is a great journal. But if you don't mind, Sheikh Saab, my saying, it is not so commonly available. अब ये कहीं ना कहीं तो मिलनी चाहिए ना. ये तो आप बांटते हैं तो मिल जाती है. अदरवाइज इट इज नॉट. इनकी वीकली भी जो है हमारी ज़बान वो भी बहुत अच्छी एक है जर्नल. मैं कहूँगा I congratulate both Dr. Srivastava, Director IIC, and Dr. Sheikh and Salman Saab, Faruqi Saab, that we have brought into
materialize this great event, literary festival for 4 days, where we will have the opportunity of many poetry lovers, or Urdu lovers, or fiction lovers, writers, authors, analysts getting together and meeting and speaking, and there will be recitations and so on. And all this record put together would again make a very, very fascinating reading. I remember more than 20 years ago, Farooqi साहब को याद हो ना याद हो, सलमान साहब को तो शायद याद है, इसी हॉल में yeah, perhaps in 2002, 20-22 साल हुए. Another very significant event was held by the Anjuman. वो भी 3-4 रोज का था, और उसमें भी जो discussions हुई थी, they were published in 2-3 volumes by the Oxford University Press. So I am sure this literary festival will also be a landmark in our efforts to popularize, revive Urdu literature and language. Thank you very much, all of you, and for asking me to be here. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता चला कि आप भी उर्दू वाले हैं, और मैं बहुत एहतराम से ये अर्ज करता हूँ कि मेरा नाम सैफ महमूद है, मुबारक हो नया टाइटल, और मैं शेख बिल्कुल नहीं हूँ। मेरे आबा व अजदाद भी शेख न थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस नाम की गलती की वजह से ही आपकी सदारत के दौरान 3 बार मेरी मेंबरशिप रिजेक्ट हो गई IIC से। बहरहाल अब मैं इस पूरे जलसे के दूल्हा अंजुमन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अतहर फारूकी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। अतहर फारूकी साहब जो है, उनका एक बहुत हालांकि वो दिल्ली वाले नहीं हैं, लेकिन बड़ा मीर का सा अंदाज है बातें कहने का। ये जो लताइफ अभी ट्रांसलेट हुए हैं, ऐसा लगता है कि अक्सर उसमें से इन्होंने क्रिएट की। एक बार मैं एक बस चीज़ अर्ज कर दूं, फिर उससे आपको समझ में आ जाएगा कि इनका जो है वो ह्यूमर किस किस्म का है। 1-2 साल पहले मैं गिर पड़ा था और मुझे फ्रैक्चर हो गया, तो आपने मुझे फ़ोन किया और कह लेंगे कि मैं आना चाहता हूँ घर। मैंने कहा तशरीफ़ लाइए, शाम को आइए, खाना खाएंगे। कह लेंगे नहीं, खाने पे नहीं, चाय पीने पीऊँगा मैं आपके साथ। तो तशरीफ़ लाए आप, चाय पी गई, और उनका कुछ थोड़ा से कोई लीगल काम था, तो वो भी उन्होंने मेरे सुपुर्द कर दिया। मैंने इनसे कहा कि साहब वेडनेसडे तक मैं आपको ये ड्राफ्ट भेज दूंगा, जो भी डॉक्यूमेंट बनाना था। अब इससे पहले कि मैं भेज ना पाया वेडनेसडे तक, और मैंने ये सोचा था कि इनसे ज़रा 2-3 दिन की और मोहलत ले लूँ मैं। वेडनेसडे शाम को आपका मैसेज आता है मेरे पास व्हाट्सएप पे। सिर्फ उसमें इतना लिखा था कि मैंने बहुत अरसे पहले एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, किसी शायर का नाम लिखा कि उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने, और उनकी बेगम ने कहा कि इन्होंने हमें कभी प्रपोज नहीं किया। तो मेरे ख्याल से अख्तर ईमान पे डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। वो उनकी बेगम ने कहा कि इन्होंने कभी हमें प्रपोज नहीं किया। तो हमने कहा, अख्तर ईमान साहब ने कहा कि भाई देखिए, हम इनके घर जाते थे, इनके साथ चाय पीते थे, इनसे बातें करते थे उन सब्जेक्ट्स पे जो इनको पसंद है। मेरे ख्याल से शुरफा इसी तरह से प्रपोज करते हैं। तो ये याद दहानी का ये तरीका जो था, मैंने साहब अगले ही दिन जो है वो डॉक्यूमेंट भेज दिया है उनको। तो एक मीर का शेर है, मैं अभी अपनी किताब टटोल रहा था तो उसमें ये मिल गया मुझे। उस शेर के साथ मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप यहाँ तशरीफ ले आए कि तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी। तब थे सिपाही अब हैं जोगी, आह जवानी यूं काटी। इस छोटी सी, इस थोड़ी सी रात में हमने क्या क्या सुहाग रचाए। डॉक्टर अतहर फारूकी साहब। मुझे यकीन है कि सैफ साहब ने जो कुछ कहा है उसमें से आप किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये वकील हैं। आप कोई वजह बताइए, आप कितना करें। ये मेरा फीस लेने के बाद झूठ बोलता है। ये मेरा खुशगवार फरीज़ा है। एक तो वो शुक्रिया की रस्म होती है कि वो रस्मी चीज़ होती है, मगर मैं वाक़ईतन शुक्रगुज़ार हूँ इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के ज़िम्मेदारान का, कि जिनकी वजह से न सिर्फ ये फेस्टिवल हम कर पाए। फेस्टिवल्स होना तो बहुत आसान काम है, एक बड़ी दुकान है फेस्टिवल्स की सब जगह,
फेस्टिवल्स होते रहते हैं, लेकिन एक उर्दू इदारे का और उर्दू इदारे जिस तरह अपने आप में सिमटते जा रहे हैं, एक उर्दू इदारे का इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के साथ के इश्तराक से ये फेस्टिवल करना, ये उर्दू की बड़ी कामयाबी है। यहाँ मेरे इत्तेफाक से पहले उस्ताद मीम अफजल साहब बैठे हैं, जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा ब्रेक दिया था। मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसी तरह जब ये किताब को छापने की बात आई, तो एक उसमें बीच में ज़रा सा ये है कि मैं किदवाई साहब का शागिर्द रहा हूँ, और जो लोग JNU में पढ़े हैं वही JNU के कल्चर को समझ सकते हैं। तो वो एक बड़ा चैलेंज था, और मुझे ये लगा कि अगर मैंने इस मामले को मीटिंग में डिस्कस किया तो फिर ये होगा कि ये किताब छप नहीं सकेगी। तो मैं किदवाई साहब के पास गया और मैंने इनसे आहिस्ता से पूछा कि क्या किताब छाप दें? मैंने कहा हाँ, छपनी चाहिए। और जिन लोगों ने किदवाई साहब की क्लासेस अटेंड की है वो आपको ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे कि जो आपने शायद ही किसी उस्ताद के सुने हो। तो उसके बाद मुझे ये लगा, मैंने सिर्फ सदफ से पूछा कि आप इसका तर्जुमा कर देंगी? उन्होंने कहा मैं कर दूंगी। तो मुझे सिर्फ ये कॉन्फिडेंस था कि ये चूंकि JNU की हैं तो इसलिए ये कर देंगी। तो ये जो JNU का कॉन्फिडेंस था, तो उसकी वजह से ये किताब तर्जुमा हो गई, जिसके लिए मैं किदवाई साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो एक अंजुमन के ऊपर तुहमत लगी हुई थी, और ये बहरहाल मुझे कहना चाहिए कि किसी इदारे को यह हक है कि वो किसी किताब को छापे या किसी किताब को न छापे, लेकिन किसी इदारे को यह हक बिल्कुल नहीं है कि वो मीर जैसे बड़े शायर की किताब को सेंसर करके छापे। तो वो एक कलंक था हमारे ऊपर जो 100 साल से लगा हुआ था, उसको हमने उतार दिया। अंजुमन ने पिछले 8-10 साल में बहुत तरक्की की है। हमारे बहुत सारे मसले थे वो हल हो गए, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग कभी अंजुमन तशरीफ़ लाएं और देखें। और अब सलमान साहब सामने बैठे हैं, तो ये मतलब मैं इनके यहाँ जाता हूँ तो इनके सामने वहाँ भी नहीं बोल पाता हूँ, यहाँ क्या। लेकिन इदारा साजी जिस तरह की सलमान साहब के यहाँ है, और जो लोग वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि जब ये दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी के सदर बने थे तो DPS के पास एक स्कूल था, और जब इन्होंने सदारत छोड़ी तो 250 से ज़्यादा स्कूल दुनिया भर में थे। तो वो इदारे चलाने का जो एक वो होता है, तो इनसे बस आहिस्ता से कहिए। और मगर मुझे ये लगता है कि ये हर दफ़ा ये सोचते होंगे कि ये आज फिर आ गया, इसको भगा दूँ। तो मगर वो एक किसी मिज़ाह-निगार का शेर है कि तेरा ख्याल भी बशक्ल दलाई लामा है, तेरा ख्याल भी बशक्ल दलाई लामा है, जो खुद तो जा ना सका और हम भगा ना सके। तो ऐसे कर करके मैंने इनसे आप लोग कभी तशरीफ लाएं, तो इस वक्त जो अंजुमन का ऑडिटोरियम है उससे ज़्यादा मॉडर्न ऑडिटोरियम शायद किसी उर्दू इदारे का दुनिया में कहीं नहीं होगा। हमारी जो लाइब्रेरी है उसका बड़ा हिस्सा डिजिटाइज हो चुका है और वो वेबसाइट पे मौजूद है। तो ये सब चीज़ें हमने की, और उम्मीद है कि ये चीज़ें आगे बढ़ती रहेंगी, और हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और जो दूसरे इदारे हैं उन तक पहुंचते रहेंगे। 22 जनवरी को हमने मीर के ऊपर एक जलसा किया था, पहला जलसा था इंडिया हैबिटेट सेंटर में। तो उनका इसरार ये था कि हम टिकट बेचेंगे। तो मैंने कहा भाई उर्दू के जलसों में तो हम लोग खाना खिलाते हैं बड़ा अच्छा, तब 30-40 लोग आते हैं। अफजल साहब यहाँ बैठे हैं, इन्होंने 10 साल तक बड़ा अच्छा खाना खिलाया उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन के तौर पे। तो मैंने कहा टिकट खरीद के कौन आएगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपको जितने टिकट चाहिए वो आप मुफ्त में ले लीजिए उर्दू वालों को देने के लिए, और बाकी हम टिकट बेचेंगे, ये हमारे ब्रांड का मामला है। उन्होंने हमें कुछ टिकट दे दिए जितने हमें चाहिए थे। उर्दू से शायद 30 या 35 लोग आए जिन्होंने मुफ्त टिकट लिए, और बाकी इंडिया हैबिटेट सेंटर ने 2,69,000 रुपए के टिकट बेचे, और वो सब मीर के जलसे में। तो उर्दू इदारों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो उन लोगों तक पहुँचे जो उर्दू से मोहब्बत करते हैं मगर उन इलाकों से दूर रहते हैं जो उर्दू के इलाके नहीं हैं। एक और बात मुझे
जो उर्दू की तहजीब है और रिवायत है उससे मुताल्लिक़ कहनी है। मैं पिछले साल रिचर्ड मॉरिस साहब को लेके दिल्ली में गया, मुख्तलिफ जगहों पे दिल्ली कॉलेज गया, वहाँ भी लोग मास्टर रामचंद्र का नाम जानते थे, बहुत सारी जगहों पे दिल्ली में। तो मैंने इनसे आखिर में हंस के कहा कि मॉरिस साहब अब अगर ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हो जाएं तो 10 साल के बाद लोग आपको भूल जाएंगे। हम मास्टर रामचंद्र को आज भी याद करते हैं 150 पौने 200 साल के बाद। तो ये उर्दू की रिवायत है जहाँ चीज़ें कुछ देर के लिए दब सकती हैं, कुछ शक्लें बदल सकती हैं, चीज़ें मरती नहीं। और आखिर में मैं इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के अकाबिरीन के साथ जो अंजुमन की हमारे दोस्त हैं, हमारे जो असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं बारी सिद्दीकी साहब, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बहुत छोटी सी टीम है हमारी 3 लोगों की, साजिद साहब हैं, आयशा नजीब हैं और सदफ इमरान हैं। और रोज़ मुझे ये लगता था कि जिस तरह हम काम करते हैं तो शाम को जाके ये दुआ करते होंगे कि सुबह हो तो ये खबर आए कि रात अतहर फारूकी को हार्ट फेल हो गया और वो आज नहीं आए। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं हुआ और आज हम ये जलसा कर रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आमतौर पे उर्दू के जलसों में वाक़ईतन इतने लोग नहीं आते हैं, तो जो लोग यहाँ उर्दू से आए हैं उनको भी ये कोशिश करनी चाहिए और हमें भी ये सबक सीखना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें उर्दू से मोहब्बत है, वो चाहे उर्दू के इलाकों में रहते हों या ना रहते हों। वोरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, श्रीवास्तव साहब आपका बहुत शुक्रिया, श्याम सरन साहब आपका बहुत शुक्रिया और आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। इसके बाद आप लोग बाहर चाय के लिए तशरीफ़ ले चलें, हम चाय पियेंगे और उसके बाद अगला सेशन जावेद अख्तर साहब का है, उसके लिए आप लोग फिर यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। और आखिरी शुक्रिया सैफ महमूद साहब का है, इनको यहाँ मेरे अलावा कोई नहीं बुला सकता था, लेकिन जब एक दोस्त ने मुझसे बाहर कहा कि आपने सैफ साहब को यहाँ बुला लिया, तो मैंने कहा भाई इसमें मुबालगा नहीं है, मैं सैफ साहब तो क्या अगर चाहता तो उनके वालिद साहब को भी यहाँ बुला लेता। तो सैफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।